Yeah, thank you, GWCA team, Yes, perfect. Thank you for giving me such opportunity to deliver a speech on rare opportunities for CA. Before starting, I want to introduce myself. I am CA Pinky Agarwal. I have dedicatedly involved in 13 years post CA experience in real estate industry. In 2016, RERA has been introduced, but in 2017, it has been introduced in fully fledged manner. From then, I am dedicatedly involved in that. So before starting the opportunities for CA, we have to know what is the RERA, how it works. RERA is real estate. RERA is applicable on the real estate industry because it was an industry that was uncontrolled, unregulated manner, and there was no transparency, accountability in that industry. So RERA had been introduced by the Parliament of India. It has come into force in May 2017 for the transparency and accountability. Every state, RERA Act is the same, but some provisions for registration, etc., are differ from state to state. In the RERA, there is a grievance redressal mechanism. Earlier that customers has to face the many problems. Their problems were unresolved due to the RERA. Customers, even stakeholders, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं। रेरा, जैसे मैंने पहले बताया कि रेरा में क्या क्या इश्यूज आते थे होम बायर्स के लिए। प्रोजेक्ट्स, देयर वाज डिलेज ऑफ प्रोजेक्ट, फॉल्स प्रॉमिस, क्योंकि पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज पेपर वर्क पर चलती है, पेपर में दिखाया जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है आफ्टर 4 years 5 years के बाद। तो what they have shown on papers, they have delivered that product according to that or not, they have done false promises or not। तो इसलिए रेरा इंप्लीमेंट किया गया। इन रेरा, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेरा, वी हैव टू mention each and everything. If you look after the RERA of the Godrej, then even quality of product has been mentioned, what product they are using to give the facility. So RERA has been introduced for the protections of the customers. Objective of the RERA, ट्रांसपेरेंसी, इंटरेस्ट ऑफ द होम बायर्स को सेव करने के लिए है, और अकाउंटेबिलिटी, टाइमली कंप्लीशन। इफ बिल्डर डज नॉट कंप्लीट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम, देन you may charge the compensation, as a customer may charge the compensation, etc. इसका की फीचर्स रेरा में क्या है कि रियल एस्टेट, चाहे वो बिल्डर हो या एजेंट, who deals in sale and purchase of the product has to register in the RERA of that state. RERA, you may check the RERA from the website also. Property dealer या property promoter will give you the पिंकी, सॉरी टू डिस्टर्ब, इसको आप वो स्लाइड शो मोड में ऑन कर देंगे? वो स्लाइड्स में इसकी वजह से स्लो दिख रही, वो छोटी दिख रही है। स्लाइड शो ऑन कर दो, इसमें नीचे ही आ रहा है ना परसेंटेज, नीचे से। हाँ, फ्रॉम बिगनिंग कर दो, यहाँ से कर दो स्लाइड शो। हाँ, अब ठीक है। रेरा फीचर्स में क्या होता है, पहले तो बिल्डर्स हो चाहे एजेंट हो, सबको रेरा में रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी कर दिया गया है। रेरा बिल्डर आपको रेरा की एक आईडी देगा या आईडी प्रोवाइड करेगा। दैट आईडी कैन बी चेक्ड ऑन द रेरा वेबसाइट आल्सो, and builder have to maintain the 70% of the fund in the separate bank account that is used for the construction purpose only. 30% amount is used by the builder for office expenses and other expenses. Earlier that बिल्डर यूज टू यूटिलाइज ऑल द अमाउंट, विड्रॉ कर लेता था पूरी की पूरी अमाउंट, क्योंकि कोई भी उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं थी, कोई भी कंट्रोल नहीं था। अमाउंट जैसे ही कस्टमर से आया विड्रॉ कर लिया, अदर थिंग्स में यूज कर लिया, लैंड परचेज करने में यूज कर लिया, तो प्रोजेक्ट डिलेड हो जाते थे। कस्टमर्स की प्रॉब्लम सारी अनरिजॉल्व रह जाती थी। तो after the implementation of the RERA, builders are bound, builders have the control that they have maintained a separate bank account. That amount can be withdrawn after the expenditure on the project, and there is a clarity of the carpet area.
प्रॉपर्टी डीलर्स या फिर आपके बिल्डर्स प्रॉपर्टी को जो भी सेल करते थे वो सुपर एरिया बेसिस पर सेल करते थे. नाउ इन द रेरा इट इज क्लियर दैट यू हैव टू सेल द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ द कारपेट एरिया. As earlier said, if timely possession is not done, then the penalties for delay attract. Home buyers have the rights for the get the information. Now, customers are aware that if you want to know what is the stage of the work project, they may gather the information from the builder. There is a compensation process right also. If project is delayed, they can demand the compensation from the builder. Now, same obligation is on the builder promoter, timely for timely completion, or he has to maintain what he has shown at the time of the registration. Sanction plan, even layout plan is also shown in the RERA at the time of RERA registration. Builder has to comply according to that sanction plan. तो अब बिल्डर्स कोई भी इस तरह से नहीं कर सकते कि दिखाया कुछ है और बेका कुछ है. तो सारी पॉलिसीज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उन्हें मेंशन करनी होती हैं. सेम इनकम टैक्स अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटी की तरह इसमें भी रेरा अथॉरिटी होती है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. जीएसटी में तो अपीलेट ट्रिब्यूनल अब बनी है, लेकिन इसमें रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल आ गई थी. पेनल्टीज अंडर रेरा if in case of any default, developers, agent, buyers have to pay the penalty. Impact of RERA on real estate sector: increased transparency, improved buyer confidence, and challenges in implemented. Now the role of the chartered accountant under the RERA. You know, chartered accountant play the vital role in every industry, but real estate industry is differ in perspective of the accounting. You are aware that in this industry, revenue recognition is whether it is percentage of completion, completed method, ICI proper guidelines are made on that industry. So with RERA you have done accounting. आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, रेरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं फॉर फंड विड्रॉल, क्वार्टरली सीए सर्टिफिकेशन कर सकते हैं. बिल्डर्स, there is no foundation on the builders to withdraw the fund. If they have done the expenditure on the project, they can withdraw the fund in a month, even in 2 times in a month, or even if no expenditure has been done by them, then no, if they have not withdraw any single penny, even they are required to take a certificate, CA certificate on a quarterly basis to comply the quarterly return compliance. So certification is the main part of the chartered accountant. रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में ये मतलब एक अच्छी बल्क में होता रहता है, जहां पर काफी सारे प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट में चलते रहते हैं. तो वहां पर रेरा रजिस्ट्रेशन और उसके बाद सर्टिफिकेशन का काम रहता ही रहता है. सेम जैसे एमसीए पोर्टल पर आपको अपने फिनेंशियल्स को रिपोर्ट करना होता है, रेरा में भी एनुअल फाइलिंग होती है जिसमें चारों क्वार्टर की रिटर्न्स को कंसोलिडेट करके इट आल्सो इंक्लूड्स द बैलेंस शीट आल्सो. एक एनुअल रिपोर्ट आती है 4-2LD, इसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही सर्टिफाई करता है. रेरा में चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइजरी कर सकता है, कंसल्टिंग कर सकता है, और अदर रोल्स जैसे फॉरेंसिक ऑडिट कर सकता है. आपका रियल एस्टेट में यदि कोई लिटिगेशन चल रहा है उसमें हेल्प कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन में कर सकता है. I have tried my best to consolidate the other things also. अभी मैंने आपको बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या रोल प्ले कर सकता है. तो वो हाउ वी विल प्ले द रोल, जैसे फर्स्ट रोल मैंने बताया था रेरा रजिस्ट्रेशन. इवन मैंने पहले भी बताया था रेरा रजिस्ट्रेशन में आपको बिल्डर भी रेरा रजिस्ट्रेशन लेगा और एजेंट भी. तो ये दोनों के केस में रेरा रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है. इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट टू स्टेट्स. Who needs to register? Individual. Whether broker is individual, he has to take the registration. Whether broker is a proprietorship firm या partnership firm or company, he has to take the registration.
any person who is dealing in sale and purchase of any real estate project or transaction, he has to take the RERA registration. Documents required for the registration: KYC, PAN card, Aadhaar card, photograph, address proof, contact details. Firms के लिए addition of the KYC, name of the firm, company, PAN card of the firm or company, registration certificate, address proof, directors की KYC हो गई पूरी, जिसमें लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल, फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ्स. Registration process, as earlier said, it is differ to state. We have to go to the RERA website, then create a login ID credentials and fill out the broker's agent details. Means KYC details आपको सारी fill करनी है. फिर जो भी required documents हैं सारे KYC के वो आपको upload कर देनी है और pay the registration fees and submit the application. Registration fees also is differ from state to state. Currently in Haryana, on individual it is 50,000 for resident. Other than individual it is 2,50,000. When we take the RERA registration, it is valid only for the 5 years. After 5 years, we have to renew. If we have not get renewed, that it get expired. So after 5 years, the fees of the renewal is for individual is 10,000, other than individual is 50,000 rupees. After the registration, brokers or builders are assigned a unique RERA registration ID. This number must be quoted in all advertisement, transaction, and project dealing. As earlier said, you may check that number on the RERA website also. RERA registration for builders and developers. RERA मस्ट है. यदि किसी के पास RERA रजिस्ट्रेशन बिल्डर के पास नहीं है तो वो RERA में अप्रूव नहीं है. मतलब उसका लेआउट, वो नॉर्मल बिल्डर है, उसका जमीन का लेआउट तो पास होगा लेकिन बिल्डिंग का लेआउट पास नहीं होगा. तो यू हैव टू चेक वेदर बिल्डर हैज टेकन द RERA रजिस्ट्रेशन और नॉट. सेम इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट टू स्टेट. RERA की एप्लीकेबिलिटी कब आती है? जब आपकी लैंड एक्सीडिंग 500 स्क्वायर मीटर है और मोर देन 8 अपार्टमेंट है इंक्लूडिंग ऑल फेजेस. Registration is required before the advertising, marketing, booking, selling any part of the project. अब आप कहेंगे कि आपने तो बोला है कि registration is required before advertising, लेकिन अभी तक बहुत सारे बिल्डर्स क्या कर रहे थे, पहले एडवर्टाइजमेंट कर देते थे, RERA रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देते, आईडी का वेट नहीं करते थे. RERA रजिस्ट्रेशन इवन किसी ने तो अप्लाई भी नहीं किया होता था, तब भी वो एडवर्टाइज करने लगते थे. अभी RERA डिपार्टमेंट पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, अब स्ट्रिक्ट हो गया है. कितने सारे बिल्डर्स को अभी उन्होंने नोटिस भेजे हैं, पेनलाइज किया है पूरा कि विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कांट डू द एडवर्टाइजिंग. तो ये पहले भी नहीं था, एक्ट में पहले भी लिखा था, लेकिन बिल्डर्स कर रहे थे तो उन सबके पास अभी नोटिस आ गए हैं RERA डिपार्टमेंट के. बिफोर registration you are not legally authorized to do the advertisement. तो बिल्डर्स के केस में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इंडिविजुअल प्रमोटर: KYC, पैन, आधार, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द लास्ट 3 years, ऑडिटेड बैलेंस शीट, डिटेल ऑफ प्रीवियस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इफ एनी. मतलब उसने किया है तो जाएगी, यदि नहीं किया है तो नहीं जाएगी. Legal title deed of the land, encumbrance certificate. What is the encumbrance certificate? Encumbrance certificate is that certificate that shown that your property is mortgage free. No, there is no pledge. Clear title is in the name of the owner. That is called encumbrance certificate. Sanction building plan and layout, commencement certificate, project development plan with timelines, perform of the allotment letter and sale agreement. ब्रोकर रजिस्ट्रेशन इज वेरी इजी, बट प्रोमोटर रजिस्ट्रेशन, जो बिल्डर रजिस्ट्रेशन होता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होता है. उसमें पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस होती है, फेज वाइज, टावर वाइज, सारा खर्चा, कंस्ट्रक्शन कैसे किस किस फेजेस में होना है, किस कैसे टावर में होना है, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कैसे कैसे जानी है, किन किन फेजेस में कितनी कितनी इनकर होनी है, इवन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना होना है, फैसिलिटी से कितना आना है, अदर डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे, गवर्नमेंट चार्जेस कितने होंगे,
ये सब भी मेंशन होता है, और आपका सेल आउट का प्लान भी मेंशन होता है। तो सारे एग्रीमेंट, अलॉटमेंट लेटर, सेल एग्रीमेंट, व्हाट सैंक्शन प्लान यू आर रिक्वायर्ड, दैट हैज आल्सो बीन मेंशन्ड। इवन क्वार्टरली रिटर्न्स के टाइम पर भी क्या क्या उस टाइम आपने सैंक्शन प्लान आए हैं वो भी डिक्लेयर करने होते हैं। तो ये ब्रोकर प्लान की तरह नहीं है कि आपने ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया और डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, हो गया। थोड़ा सा बिल्डर्स का जो रह रहा है वो लेंथी प्रोसेस है, इसमें पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बनती है। For companies or firms, certification of incorporation required, memorandum and article of association, PAN 10 of the company, registered business address proof, detail of directors, partners, audited financial statement for the last 3 years, and detail of ongoing and completed project. सेम प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का सेम है। रेरा की वेबसाइट पर जाकर आपको, रेरा पोर्टल पर जाकर लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल क्रिएट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है सारे इस एप्लीकेशन फॉर्म में, लेकिन आपका डिटेल एनालिसिस सारी लगेगी, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं। रजिस्ट्रेशन फीस इसकी प्रोजेक्ट वाइज, स्टेट वाइज, टाइप वाइज, प्रोजेक्ट के टाइप वाइज डिफर करती है कि आपका प्रोजेक्ट हाइपर पोटेंशियल जोन में है, मीडियम पोटेंशियल जोन में है या लोअर पोटेंशियल जोन में है। उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस वेरी करेगी। कौन सा टाइप है, आप अफोर्डेबल में जा रहे हैं, दीनदयाल में जा रहे हैं, लग्जरी में जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी फीस वेरी करेगी। मैंने ये शायद आपको बताना भूल गई हूँ कि रेरा रजिस्ट्रेशन आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो अफोर्डेबल है, चाहे आपका लग्जरी है, चाहे वो दीनदयाल है, सभी केसेस में रेरा रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। आप दीनदयाल के अंदर चाहे प्लॉटिंग कर रहे हैं या आप फ्लैट बनाकर दे रहे हैं, तब भी आपका प्लॉटिंग में भी आपका रेरा रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। तो आफ्टर ऑल दैट सारी चीजें करने के बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव हो जाएगा। That registration number can be viewed on the RERA portal also. You may check the builder detail also on the RERA website. If you have any doubt about the RERA ID builder, so you may check on the portal also. What is the status of the project and what product they are using at the time of the construction. You may check on the RERA portal also. You can check everything because it is the transparent. RERA has made it for the transparent, for boost the confidence of the customer. तो रेरा इम्प्लीमेंटेशन का मोटो ही ये था कि कस्टमर को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है कि जो भी हमारे लूप होल से, जो भी ट्रांसपेरेंसी में प्रॉब्लम थी कि दिखाया कुछ और जाता था, बेचा कुछ और जाता था, या फिर प्रोजेक्ट डिलेड होते थे, या फिर कंस्ट्रक्शन के टाइम पर पहले क्या होता था, लोग कहते थे मैं तो रेडी टू मूव प्रोडक्ट ही लूंगा, बिल्डर बना के देगा नहीं देगा। इसको काफी हद तक रेरा ने इम्प्रूव किया है, क्योंकि आप हर समय अपने प्रोडक्ट की फेजेस जान सकते हो कि मेरा रियल एस्टेट में जो भी प्रॉपर्टी है मेरी किस फेज पर पहुंची है, क्या टाइमलाइंस है। आप अपने ग्रीवियंस जो भी हैं, आपकी प्रॉब्लम्स, आप उसको कंप्लेंट डाल सकते हैं बिल्डर्स के अगेंस्ट। आप ये सारी डिटेल्स इस पर डाल सकते हैं। फिर आता है आपका क्वार्टरली सीए सर्टिफिकेशन का। जैसे कि मैंने बताया कि सीए सर्टिफिकेशन में आपका ये कंपलसरी नहीं है, क्वार्टरली तो कंपलसरी ही है, लेकिन बिल्डर इज नॉट बाउंड टू विड्रॉ द फंड ऑन द क्वार्टरली बेसिस, ही कैन विड्रॉ ऑन मंथली बेसिस। Even if he has done the construction expense, then it is the shoe motto of the promoter. He can withdraw 4 times even in a month. If he has done the construction expenses according to the expenses on the construction, he can withdraw the fund from the RERA account. For withdrawal of the fund, CA certification is required. तो CA certification का यहाँ पर सबसे important रोल होता है रेरा में। Along with the CA certification, 2 certificates are also required, that is the architect certificate and engineer certificate. Architect certificate certify the construction status
and engineer certificate, engineer consultant certified at technical progress, and CA certify the financial progress and eligible withdrawal. एलिजिबल विड्रॉल का मतलब अभी मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन पर एक्सपेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग विड्रॉल होगा। तो सीए की टास्क होती है रिकंसाइल करना फिजिकल प्रोग्रेस को फिनेंशियल आउटफ्लो के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है फिजिकल प्रोग्रेस एज पर आर्किटेक्ट, एज पर इंजीनियर आपकी कम हो रही है, लेकिन फिनेंशियल आउटफ्लो आपका ज्यादा हो रहा है। इन तीनों में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये मैच करने चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली सीए आपका सर्टिफाई करेगा। सर्टिफाई कोस्ट इनकर टू डेट एंड अलाउ प्रोपोर्शनेट विड्रॉल। तो उसी के जितना भी एक्सपेंडिचर आपका इंकर हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपका विड्रॉल अलाउड है। तो सीएस के पास अपॉर्चुनिटी है क्वार्टरली, तो सभी बिल्डर्स कराएंगे ही कराएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, इवन किसी बिल्डर के पास मान लिया कस्टमर से पैसा आया ही नहीं, उसने कंस्ट्रक्शन में खर्चा किया ही नहीं, तो उसका विड्रॉल बनता ही नहीं, फिर भी वो क्वार्टरली कंप्लायंस करेगा ही करेगा, चाहे नील के लिए करे। उस नील के लिए भी वो सीए से सर्टिफाई कराएगा ही कराएगा। तो सीए सर्टिफिकेशन क्वार्टरली तो बनेगा ही बनेगा। तो वो सर्टिफिकेशन आपका क्वार्टरली बेसिस पर हो सकता है, माइलस्टोन बेसिस पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक सीए की अपॉर्चुनिटी क्वार्टरली तो बनती ही बनती है। आपका किसी, यदि बड़ा रियल एस्टेट है वहां पर मंथली विड्रॉल्स भी काफी होते हैं, तो वहाँ मंथली भी आता है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सर्टिफिकेशन एक बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में होते हैं, जहां पर एक सीए अपना अच्छा रोल परफॉर्म करता है। तो अब आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपनी बहुत ज्यादा पूरी जान लगाई है कि रोल्स के साथ साथ जो भी सीए का रोल है उसको भी डिटेल में समझाया जाए। मैंने बताया था कि क्वार्टरली रिटर्न्स जाती हैं, क्वार्टरली सर्टिफिकेट्स जाते हैं। क्वार्टरली सर्टिफिकेट्स तो मैंने बता दिए। अब उन रिटर्न्स में क्या क्या डिटेल्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फिल करता है, वो उसके लिए थोड़ा सा मैंने समराइज बनाया है। ये क्वार्टरली अपडेट्स में प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, जो कि प्रॉपरली पूरी प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन होती है, जो भी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यू हैव फिल्ड देयर, दैट इंफॉर्मेशन is shown on the in project information, project name, promoter name, RERA registration number, total cost of the real estate project. As earlier said, real estate जब भी आप रेरा रजिस्ट्रेशन लेंगे आप कोस्ट भी वहां शो करेंगे और रेवेन्यू भी शो करेंगे। तो वो कोस्ट आपकी यहाँ फ्लक्चुएट होती है। टोटल कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, नंबर बिल्डिंग्स टावर फेजेस। मैंने बताया था कि आपको जब भी रजिस्ट्रेशन लेंगे आपको बताना होता है कि टावर वाइज आप कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, कैसे कैसे खर्चा करेंगे। तो वो कितनी बिल्डिंग्स होंगी, कितने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स होंगी, कितने टावर्स होंगी, उन टावर्स में भी कितने फ्लैट्स होंगे, वो सब डिक्लेयर किया जाता है। तो रेरा के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन होते हैं। टोटल इन्वेंट्री आपकी कितनी है, कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं, कितनी नंबर ऑफ टावर्स हैं, कितनी यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो आपको टावर वाइज, बिल्डिंग वाइज, फेज वाइज सब कुछ शो करना होता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल प्रोग्रेस, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द अलॉटेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। क्वार्टर में आपने कितनी अमाउंट कलेक्ट की है, कितनी अमाउंट आपने रेरा में के सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट की है, कितनी अमाउंट प्रमोटर ने ड्यूरिंग द क्वार्टर इंकर की है, मतलब प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन पर कितना खर्चा किया है। यदि कोई बोरोइंग है, मोर्गेज है प्रोजेक्ट पर, वो कितनी है। यदि आपकी बोरोइंग हुई है तो उसके लिए भी बैंक अकाउंट, सेपरेट अकाउंट एक आपका ओपन करता है, दैट इज कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। तो उसके थ्रू आपका फ्लो होता है पूरा पैसा। इन्वेंट्री मूवमेंट होती है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बुक हुई, कितनी अवेलेबल है, कितने नंबर ऑफ कार पार्किंग है, कितनी आपने उसके साथ सोल्ड करी है, कितनी अवेलेबल है। फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, उसमें पूरा आपका परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क जाता है, बिल्डिंग वाइज, फ्लोर वाइज, टावर वाइज। डिटेल्स ऑफ द कंप्लीटेड एक्टिविटी, पूरी एक्टिविटी, स्टार्ट डेट क्या है आपके प्रोजेक्ट की, टावर की स्टार्ट डेट क्या है, कंप्लीटेड डेट क्या है, स्टेटस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, क्या क्या अम्यूनिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल। इवन फोटोज आपकी वर्क प्रोग्रेस की बिल्डिंग वाइज, टावर वाइज, वो भी अटैच्ड होती हैं।
इसमें मैंने एक चीज मेंशन नहीं की है, इसमें आपका रेरा ईडीसी आईडीसी जो चार्ज करता है वो भी मेंशन किया जाता है, कितना आपने पे कर दिया है, कितना पेंडिंग है, वो सारी डिटेल्स भी जाती हैं ईडीसी आईडीसी की। That is called external development charges. EDC is called external development charges. IDC is called internal development charges. प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आपके जाते हैं, तीनों टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था 3 सर्टिफिकेशन होते हैं, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट। आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट सर्टिफाई करता है फिजिकल प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। इंजीनियर सर्टिफाई करता है वैल्यूएशन ऑफ कंप्लीटेड ऑफ द वर्क एट साइट, कितना कंप्लीट हुआ है वर्क। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका तीनों को देखकर चेक करता है कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर से क्या मेरा जितना भी विड्रॉल्स है, क्या मेरी जितनी भी परसेंटेज आ रही है वो मैच कर रही है नहीं कर रही है, कितना टोटल अमाउंट इंकर्ड हुआ है, और कितनी अमाउंट रियलाइज होनी है एलओटी से, और कितनी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रही है। इसमें बैंक की स्टेटमेंट भी अटैच होती है, तो आप ये नहीं कि आप दिखा कुछ रहे हो शो कुछ कर रहे हो। तो सारी चीजें आपकी मैच करनी चाहिए। जो आपका खर्चा जितना भी एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर से, उसका एक प्रोपोर्शन रेशो निकलता है, दैट रेशो शुड बी मैच्ड विद द आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। यदि कोई लीगल कंप्लाइंस है, प्लान में आपने कोई अप्रूवल में कोई चेंज हुआ है, आपकी प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में कोई चेंज तो नहीं हुआ है, मॉडिफिकेशन, ओरिजिनल प्लान में कोई मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट है, तो यू हैव टू मेंशन, अदरवाइज यू हैव टू डिलीवर द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट प्लान। लीगल कंप्लाइंस में यदि कोई भी आपकी कंप्लाइंस है, लीगल एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट है, एनओसी जितनी भी आपने ऑब्टेन करी है ड्यूरिंग द क्वार्टर, यू हैव टू मेंशन इन दैट क्वार्टरली रिटर्न। डॉक्यूमेंट्स आपके जैसे मैंने पहले बताया था क्या क्या अपलोड होंगे क्वार्टरली रिटर्न में, फोटोग्राफ्स ऑफ द वर्क प्रोग्रेस, कॉपी ऑफ एनओसी ऑब्टेन ड्यूरिंग द क्वार्टर, पूरे क्वार्टर में जो भी एनओसी आप ऑब्टेन करेंगे वो एनओसी की डिटेल्स यहाँ जाएगी। यदि आपके फंड्स एक्सिस है, मान लिया आपने, सपोज एग्जांपल करती हूँ, 1 करोड़ आपने कस्टमर से रिसीव किए हैं, लेकिन खर्चा आपने 50 लाख का किया है, 50 लाख आपके एक्सिस फंड्स हैं, उनकी आपने एफडी क्रिएट की है, तो एफडी यहाँ पर डिक्लेयर की जाएंगी। यदि कोई लिटिगेशन चल रही है तो उस लिटिगेशन यदि पूरी हो गई है तो उसकी ऑर्डर की कॉपी जाएगी, अदरवाइज लिटिगेशन की डिटेल्स जाएगी। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स मीन्स आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट एंड चार्टर्ड सर्टिफिकेट्स। RERA separate bank account will be opened. अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सर्टिफिकेशन इतने सारे हैं, लेकिन इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सर्टिफिकेशन में भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाने हैं। कहीं बिल्डर्स जो दिखाया मतलब आपके पेपर्स पर जो विड्रॉल हो रहे हैं वो अकॉर्डिंगली सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भी चार्टर्ड को पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं। व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इशूइंग द सर्टिफिकेट्स। हेलो, हेलो। हाँ, वॉइस आ रही है आपकी। हाँ जी। तो सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट को अंडरस्टैंडिंग द स्कीम ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या स्कीम है वो देखना है कि आपका दीनदयाल के अंदर आ रहा है, अफोर्डेबल के अंदर आ रहा है, लग्जरी के अंदर आ रहा है। तो आपको पूरा पहले स्कीम की नॉलेज होनी चाहिए, किस स्कीम में है, क्या टाइप है आपका, क्या साइज है प्रोजेक्ट का, डेवलपमेंट की स्कीम क्या प्रॉमिस किए गए हैं, तो आपको पूरे एग्रीमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, क्या ऑन पेपर पर जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यू हैव रिटर्न कंपनी इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट और नॉट। तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करने हैं, लैंड टाइटल रिपोर्ट क्लियर है नहीं है, सारे अप्रूवल्स अकॉर्डिंगली आ रहे हैं, सैंक्शन प्लान के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, डाटा भी क्रॉस करना है जैसे मैंने आपको बताया। इंजीनियर सर्टिफिकेट
और आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट जो परसेंटेज दे रहे हैं, सेम परसेंटेज आपकी मैच हो रही है नहीं हो रही है, आपके अकॉर्डिंग विड्रॉल के अकॉर्डिंग वही आ रही है नहीं आ रही है, कहीं मिसमैच तो नहीं है, डाटा मिसमैच है तो रीजन क्या है उस मिसमैच का, आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस वही है जो पेपर पर शो की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है इंजीनियर सर्टिफिकेट साइट पर तो गया ही नहीं, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपने देखा ये परसेंटेज इतनी शो कर रहा है तो मैं भी उतनी ही परसेंटेज शो कर दूं। तो ये सारा आपको तालमेल बना के रखना है, सारा चेकिंग करने के बाद ही सर्टिफिकेट इशू करना है। आप जो भी रेरा की गाइडलाइंस हैं उससे अवेयर होने चाहिए, आपको रेगुलर उन गाइडलाइंस से अपडेट होना चाहिए कि क्या गाइडलाइंस है, कोई अपडेशन आई है तो सारे कंप्लाइंस को फॉलो करते हुए ही आपको सर्टिफिकेट देना है। एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मीन्स सारी रिपोर्टिंग आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, अलॉटी से जो फंड आया है वो कितना अमाउंट रियलाइज हुआ है, रेरा में सेम अमाउंट है, 30% का बिल्डर्स के पास राइट है कि वो ऑफिस एक्सपेंडिचर के लिए यूज करे या कैसे भी यूज करे, 70% आपका जो भी रेरा अकाउंट में फंड है वो प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर के लिए ही यूज हुआ है, एनी अदर खर्चे के लिए तो यूज नहीं हुआ है, प्रॉपर विड्रॉल दिखाया हुआ है नहीं दिखाया हुआ है, जो भी आपकी बोरोइंग्स हुई हैं वो किस तरह से यूज हुई हैं तो वो आपको मेंशन करना होता है। आपको प्रॉपर किसी से बायस्ड होकर आपको अपना प्रॉपर रिपोर्ट मेंशन नहीं करनी है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन प्रॉपर आपको चेकिंग करने के बाद ही सर्टिफिकेशन देना है। और ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव के बारे में, और डॉक्यूमेंटेशन जितना आप डॉक्यूमेंट आपके पास रखेंगे, रिकॉर्ड्स रखेंगे, आप उतना ही सेफ रहेंगे इन फ्यूचर। यदि कभी कल कोई लिटिगेशन आता है तो डॉक्यूमेंट्स ही आपको सिक्योर करते हैं, रिकॉर्ड्स ही आपको सिक्योर करते हैं, कोई आपको सिक्योर नहीं करता उस टाइम, डॉक्यूमेंटेशन ही आपको सिक्योर करती है। तो प्रॉपर बैकअप होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, लीगल कंप्लाइंस को भी आपको नजर में रखकर सर्टिफिकेशन देना है। और आपको कंटिन्यूस लर्निंग ट्रेनिंग लेनी है, चाहे वो आप अपने ग्रुप के थ्रू लें, अपना एक सर्कल बना ले रियल एस्टेट का, जैसा मेरा एक अपना सर्कल है रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज का तो मुझे पता रहता है, मैं वहां से भी गाइडलाइंस भी चेक करती रहती हूँ। तो आप ट्रेनिंग किसी भी तरीके से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं कि कोई चेंज तो नहीं है। अब जैसे मैं बताती हूँ कि सर्टिफिकेट्स में आपको क्या डिक्लेयर करना होता है, इंजीनियर क्या डिक्लेयर करता है, आर्किटेक्ट क्या डिक्लेयर करता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या डिक्लेयर करता है। आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट डिक्लेयर करता है आई हैव इंस्पेक्टेड द साइट एंड वेरीफाइड द कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस एज पर द अप्रूव्ड प्लान, quality of the construction is satisfactory and the project is proceeding as scheduled, according to that he provides the certificate. Engineer certificate based on the inspection, the project has achieved the specified milestone in terms of the structural completion. Chartered accountant certificates, चार्टर्ड एक सीए वेरीफाई करता है कि आई हैव वेरीफाइड द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड बैंक स्टेटमेंट, मतलब आपका बैंक स्टेटमेंट जो रेरा का होता है उसमें विड्रॉल आपका एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग ही होता है, वो एक्सपेंडिचर आपके प्रोजेक्ट पर ही खर्च होने चाहिए। तो आपको वो वेरीफाई करना होता है कि फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम द अलॉटी हैव बीन अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज, मतलब प्रोपोर्शन 70-30 का सही तरीके से यूटिलाइज हुआ है नहीं हुआ है, वो 70% को सही तरह से प्रोजेक्ट के खर्चों पे यूटिलाइज किया गया है नहीं किया गया है, रिमेनिंग आपका एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया है। तो कंक्लूजन यही निकलता है इन तीनों रिपोर्ट्स को आपको सारी चीजों को तालमेल बनाकर ही सर्टिफिकेशन देना है। इन सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंगली आपका स्टेक होल्डर्स आप पर रिलाई कर पाते हैं, बायर्स आप पर रिलाई कर पाते हैं कि आपने प्रॉपर ईमानदारी से अपना सर्टिफिकेशन दिया है, ताकि उन्हें सही टाइमली डिलीवरी हो पाए, सही क्वालिटी मिल पाए प्रोजेक्ट की। तो ये इन तीनों पर डिपेंड करता है, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड के अकॉर्डिंग। यदि वो सही डिक्लेयर करेंगे तो बायर्स स्टेक होल्डर्स को सही इंफॉर्मेशन टाइमली मिल पाएगी। तो मैंने आपके दो प्रोस्पेक्टिव आपके कवर कर लिए हैं, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपका क्वार्टरली या मंथली जो भी विड्रॉल्स के लिए क्वार्टरली रिटर्न भी कंप्लीट कर लिए और विड्रॉल्स भी हो गए हैं, विड्रॉल्स के लिए जो सर्टिफिकेशन होते हैं।
थर्ड्स आता है आपका एनुअल रिपोर्ट। जस्ट लाइक आपको एमसीए, यू हैव टू रिपोर्ट इन रेरा आल्सो, इट इंक्लूड्स द बैलेंस शीट आल्सो। तो आपका इस एनुअल रिपोर्ट्स में जो आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स आपने फाइल की हैं, उन चारों रिपोर्ट्स को कंसोलिडेट किया जाता है। दैट शुड बी मैच्ड अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट, मतलब क्लोजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपकी मैच करनी चाहिए। सारा आपका ट्राई पार्टी डिक्लेरेशन जाती है, इसमें भी इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट जाता है, सबका कंसोल जाता है। इसके बाद आप रियल एस्टेट फील्ड में अपनी एडवाइजरी दे सकते हैं। जब कोई भी यदि किसी की मास्टरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है तो उसे प्रोजेक्ट वायबिलिटी एनालिसिस के लिए वो इजीली अपना सारा दे सकता है कि इतना आपका एक्सपेंडिचर होना है, इतना रेवेन्यू अर्न होना है, इतना परसेंटेज, सारा वो एनालाइज प्रॉपर तरीके से कर सकता है। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कर सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कराती हैं, तो वो रेरा एक्सपर्ट्स के थ्रू ही कराना चाहती हैं, क्योंकि रेरा एक्सपर्ट्स के थ्रू हमें पता चल जाता है कि यदि प्रोजेक्ट डिले है तो क्या रीजंस हैं, विड्रॉल सही नहीं हुए या सर्टिफिकेशन सही नहीं हुई। आप यदि प्रॉपर इस लाइन में हैं तो जो इनकी जेवीज और एग्रीमेंट्स डेवलप होते हैं उसमें एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। हालांकि ये आपके एडवोकेट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं, लेकिन एडवोकेट्स टैक्सेशन मैटर से अवेयर नहीं होते हैं, तो इसमें जो टैक्सेशन कंसल्टेंसी के लिए वो आपको इन्वॉल्व करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन्वॉल्व किया जाता है एग्रीमेंट्स को ड्राफ्ट करते टाइम, ताकि वो टैक्सेशन प्रोस्पेक्टिव को भी ध्यान में रखा जाए। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड भी चेंज होता है बाकी इंडस्ट्रीज से, तो वहां पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना रोल प्ले कर सकते हैं। रेरा रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या आपकी कंप्लाइंस के रिगार्डिंग आपकी कभी कभी क्या होता है कि बिल्डर्स इन हाउस अपने फाइलिंग कराता है, चाहे वो क्वार्टरली फाइल कराता है, एनुअल कराता है, लेकिन वो कंप्लाइंस प्रोस्पेक्टिव से आपको हायर कर लेता है कंप्लाइंस चेकिंग के लिए, कि प्रॉपर एडवाइजरी लेने के लिए कि सही तरीके से मेरा स्टाफ कंप्लाइंस फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप वहां भी एडवाइजरी दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में एडवाइजरी दे सकते हैं, उनके कंप्लाइंस में एडवाइजरी दे सकते हैं। रेरा में यदि आपकी कोई लिटिगेशन हुई है तो इस लिटिगेशन में भी आप मतलब मेन आपका रोल प्ले करते हैं, कि इस लिटिगेशन में वो आपको सारी जो भी कंपटीशन होगी, विड्रॉल होगी, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कोई भी एडवोकेट आपका फिनेंशियल्स को रीड करने में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट होते हैं वो कोई एडवोकेट नहीं हो सकता। सॉरी टू से, यदि कोई एडवोकेट है तो, लेकिन इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प ली जाती है, कि कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हुआ है, किस तरीके से, क्या 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 इसके लूप होल्स रहे जिसकी वजह से लिटिगेशन आई। तो डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करने में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ली जाती है। अकाउंट्स को रिकंसाइल किया जाता है कि सर्टिफिकेट्स क्या आपके आर्किटेक्ट, इंजीनियर और सीए के सर्टिफिकेट्स मैच करते हैं, या कहीं रिकंसिलेशन में भी प्रॉब्लम आई है, यदि प्रॉब्लम है तो किस वजह से आई है, कहाँ आपका प्रॉब्लम रहा है, एक्सपेंडिचर सही तरीके से मीट नहीं हुए, या एक्सपेंडिचर में भी कई बार क्या होता है कि बिल्डर कहता है कि 70% में ही ऑफिस एक्सपेंडिचर कर दें, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप रेरा में बाकी चीजों में एक्सपर्टाइज है तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का इंटरनल ऑडिट में भी एक सीए, क्योंकि वो इंटरनल ऑडिट में सारे कंप्लाइंस प्रोस्पेक्टिव आप चेक करने होते हैं, सबके आप सही तरीके से सारे कंट्रोल्स चेक करने होते हैं, तो तभी चेक कर पाएंगे जब आपको इस इंडस्ट्री में रेरा की भी नॉलेज हो और रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो इसका सेपरेट अकाउंटिंग है उसकी भी नॉलेज हो। सबको कंसोलिडेट करके ही आप इंटरनल ऑडिट प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। कंप्लाइंस चेकलिस्ट जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्लाइंस चेकलिस्ट में यहाँ रेरा में आपका, जैसे आपका बाकी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कंप्लाइंस चेक में, जीएसटी चेक कर ली, इनकम टैक्स चेक कर लिया, पीएफ चेक कर लिया, ईएसआई चेक कर लिया। यहाँ पर आपको रेरा है तो रेरा की कंप्लाइंस भी क्वार्टरली रिटर्न प्रॉपर तरीके से फाइल हुई है नहीं हुई है, एनुअल रिटर्न सही से फाइल हुई है नहीं हुई है, उसके साथ साथ आपको ईडीसी आईडीसी की भी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, वो प्रॉपर तरीके से जा रही हैं नहीं जा रही हैं,
जो फंड्स आपने रेरा को मतलब लैंड को मोर्गेज करके लिया है वो प्रॉपर तरीके से रूट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कंप्लाइंस चेकलिस्ट आपकी बहुत मतलब बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप सारी चीजों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अपना रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में जाकर रेरा रिलेटेड ट्रेनिंग वर्कशॉप डेवलपर्स के लिए एजेंट्स के लिए अरेंज करा सकता है, बुक्स लिख सकता है, आर्टिकल लिख सकता है। जैसे मैं अभी आपको वेबिनार दे रही हूँ तो वेबिनार्स कंडक्ट कर सकता है, सेमिनार्स रेरा से रिलेटेड कंडक्ट कर सकता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको तो पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कहीं भी, यदि उसकी एक्सपर्टाइज नहीं भी है और वो ट्राई करना चाहता है तो वहां भी कूदकर अपना अच्छे से रोल परफॉर्म कर सकता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तो स्कोप अनलिमिटेड है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी इतने ज्यादा नहीं है जो इसमें रोल प्ले करते हैं। तो ये भी आपका एक नया एरिया हो सकता है रेरा में, क्योंकि अभी रेरा की गाइडलाइंस और रेरा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है तो वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप बढ़ता जाएगा। जैसा कि अभी हरियाणा में नायब सिंह जी ने अभी रेरा को पूरी अथॉरिटी दे दी थी कि वो यदि किसी भी बिल्डर ने आपका कंप्लाइंस को पूरा नहीं किया है तो इंटरेस्ट पेनल्टी रिकवर कर सकते हैं। हालांकि वो 24 में उन्होंने उनको राइट्स दिया था, अभी हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर वापस ले लिए हैं। उन्होंने कहा है कि रेरा अथॉरिटी केवल इम्पोज कर सकती है, रिकवरी का काम नहीं कर सकती। रिकवरी के लिए एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई जाएगी। लेकिन रेरा अब स्ट्रिक्ट होने जा रहा है तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए स्कोप बहुत अच्छा है, वो रेरा में आपका रोल प्ले कर सकते हैं। आई थिंक मैंने जितने भी अपने व्यूज हैं उनको आपको प्रॉपर तरीके से कन्वे किया है, और सारी चीजें क्या क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट इस इंडस्ट्री में या रेरा में अपना रोल परफॉर्म कर सकता है वो अच्छे से आपको समझाया है। उस रोल के अंदर उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किस किस पर उसको ध्यान देना है, वो भी आपको मैंने इस लिमिटेड समय के अंदर पूरा समझाने की पूरी कोशिश की है। आई थिंक आपको ये मेरा सेशन बहुत पसंद आया होगा।